ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الآية ہر قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا شانتی اور پیسفل والا مذہب دیا، اور پھر جس نے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے لاسٹ نبی، انتم مہارشی، آخری اوتار، آخری سندیشٹا، لاسٹ میسنجر جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بعدہ اس نبی پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، پڑھیے اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ صدر اجلاس و نہایت ہی معزز اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے علماء دین، چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشیں میری مائیں اور بہنیں،
مغرب کے بعد سے لے کر اب تک آپ لوگ قرآن و حدیث کی باتیں بغور سماعت فرما رہے تھے۔ مجھ سے قبل بھی استاد محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا بدرالدجا ندوی حفظہ اللہ کی زبان سے قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ شام سے لے کر اب تک جتنی بھی باتیں ہوئیں ان تمام باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑھیں اللہم آمین۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی رات کے لگ بھگ 11:30 یا 11:45 بج رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب گھڑی میں 12 بج جاتے ہیں تو سامعین کا بھی اور لوگوں کا بھی 12 بج جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے بغور سنیں گے۔ آئیے میں بلا تمہید اپنی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ آج جس عنوان، جس مضمون یا وشے یا ٹاپک کہہ لیجئے جس کے اوپر میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، وہ ہے ہمارا نوجوان ہلاکتی و بربادی کے راستے پر۔ آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ۔ جو حضرات پیچھے ہیں اور جو سامنے خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان جگہوں کو پر کر لیں تاکہ مجھے بھی دیکھنے میں اچھا لگے اور بولنے میں بھی اچھا لگے۔ انشاءاللہ میں بہت قیمتی باتیں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو خالی جگہ ہیں آپ ان جگہوں کو پر کر لیں، کیونکہ دکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، مجھے بولنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ پھر سے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات پیچھے کی اور بیٹھے ہوئے ہیں یا جو کھڑے ہیں، آپ لوگ آئیں، سامنے جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، آپ ان جگہوں کو پر کر لیں۔ تو ہاں، اگر آپ اس کو بدل کر اگر میں یوں کہہ لوں کہ ہمارا سماج تباہی و ہلاکتی کے راستے پر یا بربادی کے راستے پر، تو مضمون بدل جائے گا، لیکن حقیقت نہیں بدلے گی۔ کیونکہ اگر آج ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرہ سے اور ہماری سوسائٹی سے اگر اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اگر برائیاں فروغ پا رہی ہیں، تو اس کا بہت بڑا رول اور کردار ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرہ کے اور ہماری سوسائٹی کے نوجوان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی سوسائٹی نوجوانوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کیونکہ نوجوان سماج کا اور سوسائٹی کا کیپٹل ہے، نوجوان سماج کا سرمایہ ہے، نوجوان سماج کی جان ہے۔ کسی بھی نوجوان کے بغیر سماج کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات آپ اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیجئے، وہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر سماج کہہ لیجئے یا قوم کہہ لیجئے، کوئی بھی سماج اس وقت تک پروگریس نہیں کر سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، بہتر نہیں ہو سکتا، جس سماج کے نوجوان اور جس سوسائٹی کے نوجوان باعمل نہ ہو، محنتی نہ ہو، بہادر نہ ہو اور ایمان والا نہ ہو۔ اسی طرح وہ سماج بھی دنیا کے نقشے سے مٹ جایا کرتا ہے، وہ سماج بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ سماج بھی تباہ ہو جاتا ہے جس سماج کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائے، جس سماج کے نوجوان لڑکیوں کے عادی ہو جائے،
जिस समाज के नौजवान बेईमान हो जाए, जिस समाज के नौजवान धोखेबाज हो जाए, जिस समाज के नौजवान बुज़दिल हो जाए, जिस समाज के नौजवान यानी वीवो, टिकटॉक और वीवो के आदी हो जाए, जिस समाज के नौजवान कैरम बोर्ड के आदी हो जाए, वो समाज दुनिया के नक्शे से मिट जाया करता है। सामिईन, हमारा मजहब जो मजहब इस्लाम है, ये भी दुनिया के अंदर एक सोलेह मुआशरा की तस्कील का प्रोजेक्ट रखता है। इस्लाम चाहता है कि दुनिया के अंदर एक बेहतरीन समाज बने। इस्लाम चाहता है कि दुनिया के अंदर एक सोलेह मुआशरा बने, और इस्लाम इस प्रोजेक्ट के लिए हमेशा नौजवानों को आगे रखता है। हमें और आपको पता है, जब हम सहाबा किराम की जिंदगी को उठाकर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने इस्लाम के जड़ों को मजबूत किया, जिन लोगों ने इस्लाम के जड़ों को पानी देने का काम किया, वो कौन थे? वो नौजवान सहाबा की टीम थी, वो नौजवान सहाबा की मेजॉरिटी थी, वो नौजवान सहाबा थे। लेकिन आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज हमारे मुआशरा के नौजवान, इनको अपनी अहमियत और अपनी वैल्यू का अंदाज़ा तक मालूम नहीं। वो उसको अपनी अहमियत और अपनी वैल्यू उसको आज हमारे समाज के नौजवानों को पता नहीं है। आज हमारे समाज के नौजवान आज दुश्मनान इस्लाम के टारगेट में है। हमारे समाज को तबाह करने वाली, हमारे समाज को डिस्ट्रॉय करने वाली, हमारे समाज को निस्तनाबूद करने वाली जो ताकतें हैं, आज उनके टारगेट में हमारे समाज के नौजवान हैं, हमारे समाज के यूथ हैं, हमारी सोसाइटी के यूथ हैं। उसके बावजूद भी आज इनको पता नहीं कि आज हम इनके टारगेट में आ चुके हैं और हमारे ही जरिए से हमारे ही समाज को और हमारी ही सोसाइटी को बर्बाद करने की कोशिशें कर रहे हैं। इनको आज पता नहीं है। नौजवानों, इसलिए आज मैं जितनी भी बातें करूंगा आपको मद्देनजर रखते हुए आज मैं नौजवानों के ऊपर कुछ बातें मैं रखूंगा, और सबसे पहले ये बताऊंगा कि नौजवानों की अहमियत क्या है, नौजवानों की वैल्यू क्या है, और इस्लाम नौजवानों को किस तरह हाईलाइट कर रहा है। आइए पहले एक हदीस समाअत फरमाते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, कल कयामत का दिन होगा, कल कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, और आज जो तुम दिन के उजाले में ये सूरज देख रहे हो आसमान के ऊपर, ये सूरज आज हजारों मील की दूरी पर है, ये सूरज करोड़ों मील की मुसाफत पर है, करोड़ों मील की दूरी पर है। लेकिन अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि कल ये सूरज एक हदीस के मुताबिक 1 मील की दूरी पर आ जाएगा, और दूसरी हदीस के मुताबिक 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, आज ये सूरज इतनी दूरी पर रहने के बावजूद भी, करोड़ों मील की मुसाफत पर रहने के बावजूद भी, आज हम लोग सूरज की गर्मी को और सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कल कयामत के दिन मंजर क्या होगा, हालात क्या होंगी कि ये सूरज 1 मील की दूरी पर या 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग परेशान हो जाएंगे, लोग बेहाल हो जाएंगे, और लोगों को उसके आमाल के बकदर पसीना आएगा, कोई साया नहीं होगा। कयामत के दिन सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया होगा। और अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, ओ नौजवानों, इस हदीस पर जरा गौर करना, सबातुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लोगों, 7 तरह के लोग होंगे, 7 किस्म के लोग होंगे, 7 प्रकार के लोग होंगे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन अपने अर्श के साए तले जगा देगा। 7 तरह के लोग होंगे, 7 क्वालिटी के लोग होंगे, 7 प्रकार के लोग होंगे, जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जिनको जगा देंगे, यानी अल्लाह के अर्श के नीचे उसको जगह मिलेगी। 7 तरह के लोग होंगे। हाय अल्लाह, वो खुश नसीब इंसान कौन होंगे, वो लोग कौन होंगे कि कल कयामत के दिन सूरज 3 मील की
کی دوری پر آ جائے گا یا 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، لوگ اس کی گرمیوں سے اور اس کی تپش سے پریشان ہو جائے گا، بحال ہو جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن وہ 7 طرح کے لوگ کون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگا دیں گے؟ ان میں سے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، جو 7 طرح کے لوگ ہوں گے، جو 7 پرکار کے لوگ ہوں گے، ان میں سے 1 پرکار کے لوگ وہ ہوں گے، یعنی وہ نوجوان ہوں گے، شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، جس کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزری، یعنی جس نے اپنی نوجوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاری، اس نوجوان کو بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملیں گی۔ اس نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاری، شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، کون؟ آج ہم جیسے اور آپ جیسے بدنصیب نوجوان نہیں، وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری، جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزری۔ لیکن ذرا آج ہماری اور آپ کی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھیں، آج ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ آج ٹک ٹاک ویڈیو پر آج ہماری زندگی گزر رہی ہے، ویگو ویڈیو پر آج ہماری زندگی گزر رہی ہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آج ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اور آج کتنے سے نوجوان ہیں، ابھی آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کسی چائے کے دکانوں کے سامنے کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کتنے سے نوجوان ہیں، آپ دیکھیں گے کہ رات میں جب وہ سونے کے لیے جاتے ہیں تو بلکہ نہیں سوتے ہیں، بلکہ موبائل پر یعنی لوڈو کھیل کھیل کر اور لڑکیوں سے چیٹنگ کر کر وہ رات گزار دیتا ہے، اور اس کی زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ تو یاد رکھو نوجوانوں، اگر آپ کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اگر آپ کی زندگی ان سب چیزوں میں گزر رہی ہے، تو خدا کی قسم آپ ان نوجوانوں میں سے نہیں ہیں، آپ وہ خوش نصیب نوجوان نہیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے جگا دیں گے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں بھی اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ لیکن آج جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرہ اور ہماری سوسائٹی کے نوجوان کن کن چیزوں میں تباہ و برباد ہیں، وہ کن کن چیزوں میں ہلاک ہیں، کن کن چیزوں میں تباہ ہیں، کن کن چیزوں میں برباد ہیں، میں کن کن چیزوں کا نام لوں۔ پہلی چیز ذرا غور کیجئے، آج ہمارے نوجوان دین اور ایمان کے معاملہ میں تباہ ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں، میں یہ سویکار کرتا ہوں کہ آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کے پاس ایمان ہے، میں مانتا ہوں ایمان ہے، وہ ایک اللہ پر، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آخری کتاب قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، میں مانتا ہوں، ایگری کرتا ہوں کہ ان کے پاس ایمان ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کے پاس ایمان ہونے کے باوجود عمل صالح نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس اچھا عمل نہیں ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ کے پاس ایمان ہے، نوجوانوں اگر آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن آپ ان خوش نصیب انسانوں میں سے نہیں ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے جس کو نجات ملے۔ لیکن ایک سورہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اس سورہ پر ذرا غور کیجئے گا، والعصر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اے نوجوانوں، والعصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگوں زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اس روئے زمین کے اوپر تم جتنے بھی انسانوں کو دیکھ رہے ہو، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر تم جتنے بھی انسانوں کو دیکھ رہے ہو، سارے کے سارے انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، جتنے بھی انسان اس روئے زمین کے اوپر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، آپ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں، آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ یہ اسٹیج پر آج جتنے علماء موجود ہیں یہ لوگ
لوگ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا تنویر اس روئے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر وہ کون ہے، وہ کون خوش نصیب بندہ ہے جو نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے، جو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے، جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے؟ آئیے جب ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وہ لوگوں سارے کے سارے انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، پھر آگے جواب دے رہا ہے کہ سروئے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر وہ کون ہے، وہ کون خوش نصیب بندہ ہے جو نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے عمل صالح کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ کون؟ جو الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے، جو اچھا عمل کرے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک چیز جو ایمان لائے، دوسری چیز جو ایمان لانے کے بعد جو عمل صالح کیے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے، اگر عمل صالح اس کے پاس نہیں ہے، ایمان رکھنے کے باوجود بھی وہ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، ایمان رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اگر وہ زندگی نہیں گزار رہا ہے تو یقین مانیے واللہ ہے اس کا ایمان بیکار ہے، اس کا ایمان کسی کام کے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، اگر کسی کے پاس عمل صالح ہیں، اچھا عمل ہیں، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل صالح بھی بیکار ہے۔ کامیابی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم کے عذاب سے نجات پانے کے لیے یہ دو چیز شرط ہے، ایمان کا بھی ہونا ضروری ہے اور عمل صالح کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں تو آپ کا ایمان بیکار، اگر عمل صالح ہے اور اگر ایمان نہیں تو آپ کا عمل صالح بھی بیکار۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا۔ میرا ایک فرینڈ ہے، بس مثال دے رہا ہوں آپ کو، میرا ایک فرینڈ ہے، اس نے ایک موبائل خریدا، 30,000 میں ایک موبائل خریدا، 30,000 میں۔ خریدنے کے بعد اس کا ایک بھائی سعودی عرب میں رہتا ہے، اس کا بھائی سعودی عرب میں رہتا ہے، وہ اپنے موبائل سے 30,000 کا موبائل خرید کر اپنے موبائل سے جب سعودی میں فون لگا رہا ہے تو فون نہیں لگ رہا ہے۔ تو اچانک ایک دن میرے پاس آیا اور کہا کہ بھائی تنویر صاحب آپ ذرا موبائل دیکھیے تو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا دیکھیے نا بھائی 30,000 میں موبائل خریدا اور اس کے باوجود بھی سعودی عرب میں میرا ایک بھائی رہ رہا ہے، ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو بات نہیں ہو پا رہی ہے، وہاں پہ کال ہی نہیں لگ رہی ہے، فون نہیں لگ رہا ہے، آخر بات کیا آپ ذرا دیکھیے تو۔ جب میں اس کا موبائل دیکھتا ہوں تو موبائل کے اندر سم کارڈ نہیں ہے، اس کے موبائل، بات سمجھ رہے میری؟ بجھتے پرچے نا ہمارے کو تھا جی ہاں۔ تو میں اس کے موبائل میں دیکھ رہا ہوں تو سم کارڈ ہے ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی پہلے جائیے سم کارڈ خرید کر لائیے، یہ موبائل بیکار ہے، اس موبائل سے بات نہیں ہوگی، سم سے بات ہوتی ہے۔ بولا یہ بات ہے؟ بولا ہاں یہ بات ہے۔ تو وہ پھر کیا جس دکان میں موبائل خریدا تھا اس دکان میں چلا گیا، جانے کے بعد کہتا بھائی آپ موبائل واپس رکھ لیجئے، مجھے ایک سم کارڈ دے دیجئے۔ پھر اس نے ایک سم خرید لیا اور سم خرید کر آ گیا، پھر بات کر رہا ہے، فون لگا رہا ہے تو فون لگ ہی نہیں رہا ہے، کال گھس ہی نہیں رہی ہے۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ بھائی آپ نے کہا کہ موبائل سے بات نہیں ہوتی ہے، سم سے بات ہوتی ہے، میں سم خرید کر لایا پھر بھی نہیں بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کے موبائل میں ہو سکتا ہے کہ بیلنس نہیں ہے، پہلے جائیے آپ بیلنس چیک کروائیے۔ پھر وہ دکان میں گئے اور دکان میں جانے کے بعد 50,000 روپیہ کا ریچارج کروایا۔ کتنے کا؟ 50,000 کا ریچارج۔ بڑے آدمی ہیں، 50,000 کا ریچارج کروایا، ریچارج کروانے کے باوجود بھی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ غصہ ہو گیا اور غصہ ہونے کے بعد میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے کیا جھوٹ بولا؟ کہا کہ آپ نے کہا کہ موبائل سے بات نہیں ہوتی ہے، سم سے بات ہوتی ہے، پھر میں نے سم خرید کر لایا، آپ نے کہا ہو سکتا ہے بیلنس نہیں ہے، میں نے 50,000 کا بیلنس ریچارج کروایا، اس کے باوجود بھی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے آپ لائیے۔ تو وہ لا رہا ہے تو صرف میرے ہاتھ میں سم دے رہا ہے، بولے دیکھیے سم میرے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی صرف سم سے بات نہیں ہوتی ہے، موبائل سے بات ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا آپ کیوں گھما گھما کر بات کر رہے ہیں، آپ سیدھی سے طریقے سے بات کیجئے نا۔ تو میں نے کہا کہ میرے بھائی اگر آپ سعودی عرب میں اپنے بھائی کے ساتھ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو موبائل کا ہونا بھی ضروری ہے اور سم کارڈ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس
अगर सिर्फ मोबाइल है तो आपका मोबाइल बेकार है, अगर उसमें सिम कार्ड नहीं है। और अगर आपके पास सिम कार्ड है और मोबाइल नहीं है तो आपका सिम कार्ड बेकार है। इसी तरह जिस तरह बात करने के लिए मोबाइल का होना भी जरूरी और सिम कार्ड का होना भी जरूरी, उसी तरह अल्लाह के अजाब से बचने के लिए और अजाब कब्र से बचने के लिए ईमान का होना भी जरूरी है और अमल सोलेह का भी होना जरूरी है। लेकिन आज हमारे नौजवान भाइयों के पास ईमान तो है लेकिन आज इनके पास अमल सोलेह नहीं है। और हमेशा एक बात याद रखना नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर जो भेजा है, हमारे और आपका इम्तिहान लेगा कि हम में से और आप में से कौन है जो बेहतरीन अमल करता है, जो अमल सोलेह करता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, ओ लोगों, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने मौत को और हयात को मैंने सिर्फ इसलिए पैदा किया। ओ लोगों, मैंने सिर्फ तुम लोगों को दुनिया के अंदर इसलिए भेजा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, मैं तुम्हें जांचूंगा, मैं तुम्हें परखूंगा, मैं तुम्हारा परीक्षा लूंगा, मैं तुम्हारा एग्जाम लूंगा कि तुम में से कौन है जिस रूए जमीन के ऊपर बेहतरीन अमल करता है, जिस रूए जमीन के ऊपर आसान अमल करता है, जिस रूए जमीन के ऊपर तुम में से कौन है जो अमल सोलेह करता है। अल्लाह तबारक व तआला भी कहता है, मैं तुम्हें आजमाऊंगा और तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा गया है कि तुम में से कौन है जो बेहतरीन अमल करता है। एक मिनट जरा तवज्जो देंगे कि अमल सोलेह किसे कहते हैं, अच्छा अमल किसे कहते हैं? क्या वो अमल जो आपके नजदीक अच्छा हो और आप कर दे? नहीं। अमल सोलेह क्या है? अमल सोलेह वही अमल है जिसको आप कर रहे हैं, उसका हवाला और उसकी दलील किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के अंदर मौजूद हो। अगर आप कोई अमल कर रहे हैं और अगर कुरान और हदीस से यह अमल साबित है तो ये हसन अमल है, यह अमल सोलेह है। और अगर कोई अमल या कोई काम अगर आपके नजदीक अच्छा है और आप कर रहे हैं लेकिन उसकी दलील किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में मौजूद नहीं है तो यकीन मानिए वो अमल सोलेह नहीं हो सकता है। ये बात भी आप अपने जहन के अंदर बैठा लीजिए, वरना बहुत सारे लोग तो बीड़ी पीने को भी अमल सोलेह करार देंगे क्योंकि उसको बीड़ी पीने में अच्छा लगता है। आप लोग बीड़ी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? अब पीते हैं ना। आज तो हर नौजवान इल्ला माशाअल्लाह इक्का दुक्का छोड़कर ज्यादातर नौजवान आज सिगरेट के आदी हो चुके हैं, आज सिगरेट के आदी हो चुके हैं। और कितने ऐसे नौजवान हैं कि अगर वो बाथरूम में जाएगा और बाथरूम में जाने के बाद अगर वो सिगरेट नहीं पिएगा के लिए जाएगा उस काम को वो कर ही नहीं सकता है। उस काम को करने से पहले शर्त है कि पहले वो एक बीड़ी पिए या एक सिगरेट पिए। जैसा कि एक मिसाल मैं आपको दूं कि एक नौजवान मेरे पास आया और आने के बाद कहा कि मौलाना तनवीर साहब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए आप क्या सवाल करना चाहते हैं? तो उसने कहा कि मौलाना साहब चावल खाने के लिए या कुछ काम करने के लिए या किसी काम की शुरुआत करने के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैंने कहा अल्लाह का नाम लेना चाहिए, बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। कहा ये बात है। मैंने कहा मौलाना बीड़ी पीने के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, सिगरेट पीने के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? तो मैंने कहा बेवकूफ, बीड़ी पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए कोई दुआ होती है? दूसरे कहा हाँ मौलाना दुआ तो होती है, मैंने सुना। मैंने कहा बेवकूफ, नहीं तो बीड़ी पीना और सिगरेट पीना तो इस्लाम के अंदर हराम है और आप कहते हैं कि बीड़ी पीने के और सिगरेट पीने के लिए भी दुआ नहीं। तो मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसी कोई दुआ है नहीं। क्या आप जानते हैं कौन सी दुआ है? तो नौजवान कहता है मौलाना मैं जानता हूं कि बीड़ी पीने के लिए भी दुआ। मैंने कहा बता कौन सी दुआ है, तू ही बता। तो एक दुआ पढ़ता है, वो दुआ क्या कहता है कि अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बीड़ी टाना। ये बीड़ी पीने की दुआ है, नऊज़ुबिल्लाह। तो मैं क्या बता रहा था? मैं अपनी बातों से भटक गया। मैं बता रहा था कि अमल सोलेह वही अमल है जिसको आप कर रहे हैं और उसकी दलील किताबुल्लाह कुरान में या हदीस में मौजूद है। अगर आप उसको कर रहे हैं तो यह अमल सोलेह है। अगर ऐसा कोई अमल कर रहे हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं या ऐसी कोई इबादत कर रहे हैं जिसकी दलील कुरान में और हदीस में मौजूद नहीं है तो यकीन मानिए यह अमल सोलेह नहीं है, यह अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए, आज हमारे नौजवान किस चीज़ में तबाह हैं? आज हमारे समाज के नौजवानों के पास कोई टारगेट नहीं है। आज हमारे
नौजवानों का कोई गोल नहीं है, आज हमारे नौजवानों के पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आज हमारा नौजवान सोचता है कि दुनिया में आए हैं, कमाना है, खाना है और एंजॉय करना है, बस यही है और कुछ नहीं है। लेकिन यकीन मानिए ये हमारी और आपकी जिंदगी नहीं हो सकती है, ये तो मुशरिकों की जिंदगी है। हमारा और आपका आने का मकसद इस दुनिया में, नौजवानों आप सोच रहे हैं कि दुनिया में आने का मकसद बस इतना है कि कमाना है, खाना है और गर्लफ्रेंड्स वगैरह बनाना है, एंजॉय करना है, तो नहीं, यकीन मानो दुनिया में आने का मकसद तो सिर्फ यह है। दूसरी चीज कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि लोगों वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तुमको इस दुनिया के अंदर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि तुम मेरी इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने इंसानों को और जिन्नातों को मैंने सिर्फ इसलिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ नौजवानों तुमको इस दुनिया के अंदर सिर्फ इसलिए भेजा गया, ऐ मुसलमानों तुमको इस दुनिया के अंदर सिर्फ इसलिए भेजा गया ताकि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को संवारो, इस दुनिया में रहकर आखिरत को सुधारो और आखिरत को संवारने के लिए और आखिरत को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है। इसलिए नौजवानों आपका टारगेट, आपका मकसद और आपका गोल दुनिया नहीं है, बल्कि आपका टारगेट तो आखिरत होना चाहिए, आपका मकसद तो आखिरत होना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया के अंदर हम और आप एक मुसाफिर की हैसियत से आए हैं, जैसा कि एक हदीस है और तिरमिज़ी की हदीस है। इस हदीस पर जरा गौर कीजिए। ऐ नौजवानों आप दुनिया ही को सब कुछ समझ रहे हैं, आज हमारा और आपका सिर्फ बस इतना टारगेट है कि दुनिया में रहना और यही के लिए सब कुछ करना है। हम और आपने तो आज आखिरत को भुला दिया है, लेकिन आपको याद होना चाहिए और ये बात भी याद रहनी चाहिए कि इस दुनिया के अंदर हम और आप एक मुसाफिर की हैसियत से आए हैं। जैसा कि तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्तों, खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटा करते थे। जब अल्लाह के नबी उस चटाई के ऊपर लेटते थे तो लेटने की वजह से अल्लाह के नबी की पीठ पर चटाइयों की निशानियां पड़ जाया करती थी, चटाइयों की निशान पड़ जाया करता था। जब सहाबा किराम ने देखा तो सहाबा किराम अल्लाह के नबी के पास आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, आप इस चटाई के ऊपर सोते तो सोने की वजह से आपकी पीठ पर चटाइयों की निशानियां पड़ जाया करती है, आपकी पीठ पर चटाइयों का निशान पड़ जाया करता है। ऐ नबी अगर आप हमें इजाजत दे, अगर आप हम लोगों को हुक्म दे तो हम लोग आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम ना कर दूं। जब सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी क्या आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम ना कर दूं, ऐसा बिस्तर का इंतजाम ना कर दूं कि जिसके ऊपर अगर आप सोए तो आपको आराम महसूस हो, आपको राहत महसूस हो और आपकी पीठ पर निशानियां ना पड़े, यानी आपको परेशानी ना हो, आपको तकलीफ ना हो। तो मेरे रसूल का जवाब सुनो और नौजवानों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। मेरे नबी से जब पूछा गया और मेरे नबी से जब इजाजत मांगी गई, अगर आप इजाजत दे तो आपके लिए कई नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न कर दूं, तो मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, ओ मेरे साहबा, तुम लोग कह रहे हो कि मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम करोगे, लेकिन मैं मोहम्मद नरम गरम बिस्तर को लेकर मैं क्या करूं, मैं गद्दा को लेकर मैं क्या करूं, बल्कि मैं इस दुनिया के अंदर उस मुसाफिर की तरह आया हूं जो राह चलते चलते जब थक जाता है, तो जब वो राह चलते चलते थक जाता है तो किसी दरख्त के नीचे, किसी पेड़ के नीचे या किसी पौधे के नीचे थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए बैठ जाता है या आराम फरमाने के लिए सो जाता है और थोड़ी देर आराम करने के बाद, थोड़ी देर सुस्ताने के बाद अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। वो मेरे साहबा, मैं भी इस दुनिया के अंदर उसी मुसाफिर की तरह आया हूं और मैं भी अपनी मंजिल को चला जाऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, नौजवानों, इस दुनिया के अंदर हम और आप एक मुसाफिर की हैसियत से आए हैं। ये दुनिया हमारे लिए और आपके लिए आरजी है, ये दुनिया हमारा आपका टारगेट और मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया फारजी है, ये दुनिया आरजी है, ये दुनिया चंद दिनों की चांदनी है, ये दुनिया मिट जाने वाली है, ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ताल्लुक से भी कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचा। आप उठाए
आइए कुरान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 185 नंबर आयत के अंदर इसका नक्शा खींच रहा है। पहले इसको सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह मैं तीसरी चीज की तरफ आगे बढ़ूंगा। नौजवानों, बस मैं यह आयत आपके लिए पढ़कर जा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि ये दुनिया हमारे लिए और आपके लिए बाकी रहने वाली नहीं है, और हम और आप भी दुनिया के अंदर ज्यादा दिन जिंदा रहने वाले भी नहीं है। आइए, अल्लाह के नबी अल्लाह फरमाता है, और नौजवानों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा और हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा। ये बात सच है, इस बात को आप अपने ज़हन के अंदर फिट कर लीजिए। हर इंसान को मरना है, हर इंसान के पास एक ना एक दिन मौत आएगी, और दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जाने के बाद आप मौत से बच जाएंगे, या दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान भी नहीं है कि जिसके पास मौत नहीं आएगी। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर ये ऐलान कर दिया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही होगा। हर इंसान के पास मौत आएगी। नौजवानों, आपके पास भी मौत आएगी, हमारे पास भी मौत आएगी। हमें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना है, आपको भी इस दुनिया के छोड़कर जाना है, आपके अहल अयाल को भी इस दुनिया से रुखसत होकर और इस दुनिया से विदाई लेकर जाना है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। फिर उसके आगे फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फिर आगे फरमाता है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। नौजवानों, ये बात हमेशा याद रखना कि ये दुनिया की जो जिंदगी है, ये चंद दिनों की जिंदगी है। ये जो दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी बस धोखा है, दुनिया की जिंदगी बस फरेब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इस दुनिया को कमाने के लिए और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के लिए आपने जो आखिरत को भुलाकर आपने जो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं, दौलत जमा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, यकीन मानिए इन तमाम चीजों को छोड़कर आपको इस दुनिया से जाना है। और जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो अपने साथ एक ही चीज को लेकर जाएंगे, और वो चीज है अमल सोले, वो चीज है अच्छा अमल, वो चीज है आपने अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए जो किया वही चीज। तो दो चीज हो गई। मुख्तसर अंदाज में भी आपके सामने बात कर रहा हूं क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहली चीज, आप अपने ईमान को मजबूत कीजिए। दूसरी चीज, अपने टारगेट को और अपने गोल को आप दुनिया नहीं बल्कि आखिरत को बनाइए। आइए तीसरी चीज पर जरा गौर करते हैं। तीसरी चीज, आज हमारे समाज और हमारे मुआशरा के नौजवान जिस चीज में तबाह व बर्बाद हैं वो है प्यार, मोहब्बत और इश्क। मुझे बताइए, आज हमारे समाज के हर नौजवान तीसरी चीज प्यार, मोहब्बत और इश्क के चक्कर में पड़ा हुआ है। उसको प्यार, मोहब्बत और इश्क के अलावा उसको कुछ सूझता ही नहीं है। हर नौजवान आज लड़कियों के पीछे भाग रहा है, आज हर नौजवान इसी को सब कुछ समझ रहा है। और आप हैरत तो इस बात पर हैं कि आज से पहले 20 साल पहले या 25 साल पहले या फिर 15 साल पहले यूं कह लीजिए, अगर हमारे समाज के अंदर और हमारे मुआशरे के अंदर अगर किसी नौजवान का, अगर किसी नौजवान लड़के का, अगर किसी लड़की के साथ अगर अफेयर होता, अगर गलत ताल्लुकात होता, अगर गलत रिश्ता होता तो अपने अहल अयाल से छिपाता था, अपनी माँ से छिपाता था, अपने बाप से छिपाता था, अपने भाई से छिपाता था। लेकिन आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि अगर आज हमारे समाज में और हमारे मुआशरे में अगर किसी लड़के का, अगर किसी लड़की के साथ अगर गलत ताल्लुकात हैं, अगर अफेयर हैं, तो उसके लिए स्टेटस बन गया है। वो फख्र करता है और कहता है कि मेरी इतनी लड़कियों के साथ मेरा ताल्लुकात है, इतनी लड़कियों के साथ मैं रात में बात करता हूँ, इतनी लड़कियों के साथ चैटिंग करता हूँ। ये फख्र की चीज हो गई है मेरे प्यारे साथियों। और मुझे बताइए, इल्ला माशाअल्लाह, एक दो नौजवानों को छोड़कर हमारे समाज के अंदर जितने भी नौजवान हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि बताइए आप किसी लड़की के साथ बात करते हैं या नहीं करते हैं, आप किसी लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, तो वो कहेंगे हाँ मौलाना, हम लड़की से बात करते हैं, लड़की से मोहब्बत भी करते हैं। आपको पता है आज हमारे बच्चे 11 साल के हैं फिर भी गर्लफ्रेंड रखता है, 12 साल के हैं
9th क्लास में पढ़ते हैं, प्यार और मोहब्बत किसे कहते हैं अभी उसको सही तरीके से मालूम नहीं है, फिर भी वो लड़कियों के पीछे भाग रहा है, फिर वो किसी ना किसी से मोहब्बत करते हैं। आज यही चल पड़ा है आज। और एक बात आप याद रखिए कि आज हमारे समाज के अंदर कितने ऐसे मर्द हैं, कितने ऐसे जवान हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद भी और शादी होने के बावजूद भी ऑफिस में काम करता है, किसी कंपनी में जॉब करता है, दुकानदार हैं, डॉक्टर हैं या कुछ भी हैं, किसी और लड़की के साथ उसका चक्कर चलता है। शादीशुदा होने के बावजूद भी अपनी बीवियों को छोड़कर, सिर्फ ये मर्दों का मसला नहीं है, ये आज हमारे समाज की औरतों का भी मसला है, आज हमारे समाज में रहने वाली हमारी माओ और बहनों का भी मसला है कि शादी होने के बावजूद भी, निकाह होने के बावजूद भी शौहर मुंबई में रहता है, शौहर सऊदी अरब में रह रहा है, शौहर दिल्ली में रह रहा है और लड़की का और बीवी का चक्कर किसी गैर मर्द के साथ और किसी मर्द के साथ चल रहा है। आज ये सब कुछ आज हमारे समाज के अंदर चल रहा है। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं, 2 दिन पहले मैसेंजर में मेरा एक भाई, मैं उसको नहीं पहचानता हूं, वो मुझे SMS कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कह रहा है कि मौलाना साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मैं तो कुछ बहुत बड़ा आलिम नहीं हूं, मैं हो सकता है कि आपका सवाल का जवाब ना दे सकूं, पर आप कीजिए, मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको सवाल का जवाब दे सकूं। वो मुझे सवाल कर रहा है, क्या सवाल, आप चौंक जाएंगे कि आजकल नौजवान अगर प्यार भी कर रहे हैं किसी लड़की के साथ, अगर उसका किसी लड़की के साथ अगर कोई चक्कर भी चल रहा है तो उसको गुनाह नहीं समझ रहा है, उसको गलत नहीं समझ रहा है। क्योंकि मुझे इसी सवाल के बाद मुझे पता चला, वो मुझे सवाल कर रहा है कि तनवीर साहब, मैं एक लड़की के साथ 3 साल से मैं बात कर रहा हूं फोन पे, एक लड़की के साथ मैं 3 साल से मोहब्बत कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं, लेकिन अभी उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई है। मैं उसी अगर मैं शादी करूंगा तो मैं उसी से करूंगा, लेकिन मैं उसको डेट पे ले जाना चाहता हूं, मैं कहीं घूमने के लिए ले जाना चाहता हूं, मैं किसी उसको अपने साथ डिनर के लिए ले जाना चाहता हूं, तो क्या ये इस्लाम के अंदर जायज है? देखिए 3 साल से बात कर रहा, 3 साल से चैटिंग कर रहा है, 3 साल से उसके साथ सब कुछ कर रहा है और वो कहता है कि मैं उसी से शादी करने वाला हूं। आप मुझे बताइए, क्या उसके साथ मैं घूमने के लिए जा सकता हूं? क्या उसको मैं डेट पे लेके जा सकता हूं? क्या मैं उसको अपने साथ मिला के लेके डिनर पे जा सकता हूं? इस तरीके का सवाल किया जा रहा है। नौजवानों, हमेशा याद रखना, अरे किसी लड़की के साथ 3 साल तक चैटिंग करना, किसी लड़की के साथ 3 साल तक बात करना, किसी लड़की से प्यार करना, मोहब्बत करना, डेट पे ले जाना तो बड़ी दूर की बात है। अरे इस्लाम तो ये कहता है, इस्लाम तो ये तालीम देता है, इस्लाम तो ये शिक्षा देता है कि अगर किसी लड़की की तरफ अगर आपकी नजर पड़ जाए तो इस्लाम कहता है कि आप अपनी नजर को फेर लीजिए, उसकी तरफ आपकी दूसरी नजर नहीं पड़नी चाहिए। अब बताइए, जो इस्लाम किसी गैर महरम लड़की को देखना हमें मना करे, फिर उसके साथ मोहब्बत करना, उसके साथ प्यार करना, उसके साथ डेट पे जाना, उसके साथ डिनर पे जाना और उसके साथ पूरी रात भरकर चैटिंग करना, इस्लाम इसकी इजाजत कैसे दे सकता है? नौजवानों, हमेशा एक बात याद रखना, इस्लाम शादी से पहले इस तरह के रिश्ता को और ताल्लुकात को और कनेक्शन और चक्कर को इस्लाम हराम करार देता है, इस्लाम नाजायज करार देता है। लेकिन आप ये भी बात याद रखिए, मैं जानता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द के अंदर लड़की के लिए अट्रैक्शन रखा है, कशिश रखी है, या एक लड़की के अंदर एक मर्द के लिए कशिश रखी है। एक मर्द औरत के बगैर अधूरा है, जिंदगी नहीं गुजार सकता, और एक औरत मर्द के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती। इस्लाम इस फितरत के तकाज़ा को जानता है, इसलिए इस्लाम ने हमें और आपको एक रास्ता दिखा दिया और कहा कि तुम निकाह कर लो। इस्लाम हमें और आपको एक मसला और याद रखिए कि आज हमारे समाज के अंदर ज़िनाकारी और बेहयाई बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। इसके पीछे जो मकसद है और इसके पीछे जो कारण है, जो वजह हैं, उनमें से एक वजह ये भी है प्यार, मोहब्बत और इश्क। यही प्यार धीरे धीरे ज़िनाकारी में और बेहयाई में तब्दील हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने हमें और आपको ज़िनाकारी करने से नहीं रोका, ज़िना का काम गलत करने से नहीं रोका, बल्कि इस्लाम ने तो हमें और आपको उसके करीब जाने से भी रोका। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, नौजवानों, ज़िना करना तो बड़ी दूर की बात है, बेहयाई का काम करना तो बड़ी दूर की बात है, किसी लड़की के साथ गलत काम का इर्तिकाब करना
करना तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना, तुम जिना के करीब भी मत जाओ। लेकिन आज देखिए, एक बात मैं आपके सामने कहकर जाना चाहता हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात। हो सकता है कि आपको बुरा लगे, हो सकता है कि आपको गलत लगे, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे कह लेने दीजिए। आज ज्यादातर देखेंगे हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारी बच्चियां कॉलेज में पढ़ती हैं, दोनों में कनेक्शन है, दोनों प्यार करते हैं। और प्यार, एक बार प्यार हो जाने के बाद, एक बार मोहब्बत हो जाने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई उनको कोई कुछ के नहीं कह सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो कुछ भी करे तो उसको गलत भी नहीं समझ रहा है पहले। और एक बात याद रखिए कि पहले क्या होता था कि लड़का लड़कियां, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड सिनेमा देखने के लिए जाया करते थे, सिनेमा देखने के लिए जाया करते थे। तो लोग समझते थे कि अब सिनेमा देखने के लिए आए, हो सकता है फिल्म देखेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन वल्लाह है तो अभी कलेक्शन जिन अल्लाह तबारक व तआला इसके सदका को कबूल फरमाए। और सलाहुद्दीन साहब की जो जो परेशानियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, पढ़िए आमीन। तो हाँ, जो बता रहा था कि पहले ऐसा होता था, सिनेमा हॉल में जाते थे तो समझे क्या समझते, यार मूवी वूवी देखने के लिए गया, थोड़ा एंजॉय करेंगे, बस निकल आएंगे। लेकिन अभी हर सिनेमा हॉल में, यकीन मानिए, हर सिनेमा हॉल में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो कपल हैं, उस कपल के लिए अलग से जगह बनाई जाती है। अलग से जगह बनाने का मतलब क्या और मकसद क्या है? अलग से जगह बनाने का मतलब और मकसद ये है कि वो लोग सिनेमा और फिल्म और मूवी देखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि कुछ और करने के लिए आए हैं। जब वो करेंगे तो किसी की नजर ना पड़े, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, और उसके लिए अलग से चार्ज लिया जाता है। और नौजवानों, अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने नौजवान आज प्यार और मोहब्बत के नाम पर लड़कियों के साथ बेहयाई और बुराई का इर्तिकाब कर रहा है। नौजवानों याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि ज़िना करना तो बड़ी दूर की बात है, बेहयाई का काम करना तो बड़ी दूर की बात है। वला तक़रबुज़्ज़िना, तुम जिना के करीब भी मत जाओ। लेकिन ये भी मसला याद रखो, अगर तुम अपनी जवानी पर कंट्रोल नहीं पा रहे हो, अगर तुम अपनी शर्मगाह पर कंट्रोल नहीं पा रहे हो, नौजवानों, अगर तुम अपनी निगाह पर कंट्रोल नहीं पा रहे हो, तो अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या माशरा सबाब, कि नौजवानों, फलतज़व्वज, तुम निकाह कर लो। इस्लाम ने हमें और आपको ज़िनाकारी से, प्यार मोहब्बत जैसे घिनौनी चीज से इस्लाम बचने के लिए हमारे लिए और आपके लिए रास्ता दिखा दिया, निकाह की शक्ल में। नौजवानों, अगर तुम कंट्रोल नहीं पा रहे हो, अगर तुम बुराई से नहीं बच पा रहे हो, अगर तुम जिना से नहीं बच पा रहे हो, अगर अपनी नजरों की और शर्मगाहों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हो, तो जाओ तुम निकाह कर लो। और एक मसला ये भी याद रखिए, उसके बावजूद भी इस्लाम ने पहले आपको मना किया। इस्लाम ने मना करने के बाद आपको एक रास्ता दिखाया, दिखाने के बावजूद भी अगर कोई गलत काम करता है, अगर कोई बेहयाई का और बुराई का इर्तिकाब करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम का इरशाद फरमाता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, कि उस नौजवान मर्द और उस नौजवान लड़की को, उस औरत और उस मर्द को जिन लोगों ने निकाह से पहले हरामकारी का इर्तिकाब किया, बदकारी का इर्तिकाब किया, चाहे वो उससे मोहब्बत क्यों ना करता हो, चाहे वो उससे प्यारी क्यों ना करता हो, इस्लाम कहता है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। और शादीशुदा होने के बावजूद भी बेहयाई का काम करने वालों, शादीशुदा के बाद भी ज़नाकारी का काम करने वालों, मेरी माँ और बहनों, आप भी गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई मर्द, समाज का अगर कोई मर्द या अगर कोई औरत निकाह होने के बावजूद भी, शादीशुदा होने के बावजूद भी, अपनी बीवी रखने के बाद या फिर अपने शौहर रखने के बावजूद भी अगर कोई बेहयाई का काम करता है, अगर बुराई का काम करता है, अगर ज़नाकारी का इर्तिकाब करता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को दुनिया में जीने का कोई अधिकार
अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को मैदान मक्तल में लाया जाए और मैदान मक्तल में ले आने के बाद उसको पत्थर मार मार कर उसको खत्म कर दिया जाए, पत्थर मार मार कर उसको रजम कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। इस्लाम के अंदर जिस चीज की सजा ये हो कि शादीशुदा होने के बाद अगर गलत काम करे तो उसको खत्म कर दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको रजम कर दिया जाए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इतनी कठोर सजा सुनाने के बावजूद भी आज हमारे समाज के अंदर कितने नौजवान मर्द और औरतें ऐसे हैं कि निकाह होने के बाद गलत कामों का इर्तिकाब कर लेते हैं। एक चीज। दूसरी चीज मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं, आज हमारे नौजवानों को सामने रखते हुए कितने नौजवान हैं आज जाकर रेप कर लेते हैं किसी लड़कियों को जबरदस्ती पकड़कर, और जिनकी वजह से आज इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। इस्लाम के खिलाफ तरह तरह की बातें और तरह तरह के इल्जामात इस्लाम के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जैसा कि एक मिसाल हमारे सामने अभी अभी आई, हैदराबाद के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन चारों को वहां की पुलिस ने इनकाउंटर करके उनको खत्म कर दिया। आप लोगों ने नाम सुना